हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ओपन एंड क्लोज्ड शेप्स, पॉलीगॉन, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, parts of a circle, constructing a circle. We have studied about geometry in previous classes. Now we shall study more about it. First is point. In geometry, point is used to mark the exact position or location of a place. It is the smallest shape in geometry. A dot is used to denote point. A point has no length, breadth or thickness. A point can be denoted by any capital letter of the English alphabet. A point is read as point A, point B and so on. All geometrical figures are made of point. तो यहाँ पे देखो साइड में given है ये सारे point A, B, C, P, R, S. All these are points. Now next is line. A line is a collection of infinite points extended endlessly in both the directions along a straight path. The figure given alongside represent a line AB or BA and read as line AB or line BA. ये जो given है, दोनों तरफ arrows हैं, दोनों तरफ arrows हैं, that means दोनों तरफ ये क्या हो रही है, endlessly इंक्रीज हो रही है. इसको हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, लाइन ए बी और बी ए, और ये हमारा क्या है, सिंबल है लाइन को डिनोट करने का. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड. लोअर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच एज एल, एम और एन आर यूज्ड टू डिनोट अ लाइन. नाउ नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. Draw a straight line using a ruler. Mark 2 points, say A and B, on its end. These 2 points show that the line has a beginning and an end. It also has a finite length. A straight line with end points and finite length is called a line segment. क्या बोला गया है उसको? Line segment, जिसका एक starting और एक ending point होता है और एक fixed length होती है. It is represented as line AB. ये क्या है हमारी line AB. It has a definite length which can be measured with a ruler. जैसे ये given है हमारे पास, इसका एक starting और एक ending point है line AB. Now common error. While measuring line segments, always keep the zero mark of the ruler at one end of the line segment and then take the reading of the other end. यहाँ पे जब भी हम किसी भी रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो इस तरह से हम बीच में कहीं पे भी रख के हम मेज़र नहीं कर सकते या लाइन नहीं बना सकते. हमेशा हमें इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज रे. A line segment extended indefinitely in one direction is known as a ray. This is an example of ray. It is denoted as ray AB. ये हमारी रे है. एरो का मतलब है कि ये endlessly आगे बढ़ रही है. That means it has a starting point but no end point. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा सिंबल है रे AB. That means एक A is the starting point और B की तरफ ये endlessly क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. रे AB is different from रे BA. BA होगा, that means B का हमारा क्या है, B starting point है और A की तरफ वो endlessly बढ़ रहा है. As A is the starting point of the ray AB and B is the starting point of the ray BA. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is open and closed shapes. Flat shapes can be made with curved lines and with line segments. Now, open shapes. The shapes which start and end at different points called open shapes. जिनका starting और ending point अलग अलग होता है. जैसे यहाँ पे N, start यहाँ हुआ, end यहाँ हुआ. C, start यहाँ हुआ, end यहाँ हुआ.
यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, W यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड, U, S एंड सर्कल, ये वाला। तो ये क्या है हमारी ओपन शेप्स, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज्ड शेप्स। द शेप्स विच स्टार्ट एंड एंड एट सेम पॉइंट कॉल्ड क्लोज्ड शेप्स। जैसे सर्कल है, इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे, यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं पे आके एंड हो गया, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इसी तरह से ट्राइंगल, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, दीज आर क्लोज्ड शेप, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीगॉन। The closed figures or shapes made with line segments are called polygon. A polygon can have 3 or more sides. The point at which 2 sides meet is called a vertex. Now first is triangle. A simple closed figure made of 3 line segments is called a triangle. In the given figure, ABC is a triangle. ये हमारी क्या है, triangle which is made up of 3 lines. It has 3 sides, namely कौन कौन सी हैं, AB, BC and CA. It has 3 vertices, plural of vertex, namely vertices कौन से, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, A, B and C. These are 3 vertices of a triangle ABC. Now next is quadrilateral. A simple figure enclosed by 4 line segments called a quadrilateral, जिसमें 4 line segments होते हैं. In the given figure, PQRS is a quadrilateral. ये हमारा क्या है, एक quadrilateral है. It has 4 sides, namely 4 sides हैं, PQ, QR, RS and SP. These are 4 lines या 4 sides. It has 4 vertices. 4 vertices जहाँ 2 line segment मिलते हैं. These are P, Q, R and S. These are the vertices of quadrilateral PQRS. A polygon should have a minimum of 3 sides. Polygon के लिए कम से कम 3 sides होना जरूरी है. Now next is special types of quadrilaterals. Now first is square. A quadrilateral in which all the sides are equal. जिसकी सारी sides क्या होती हैं, equal होती हैं. In the given figure ABCD, this, it is a square. It has 4 equal sides. 4 equal sides means AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. It has 4 vertices. Vertices कौन से, जहाँ पे 2 line segment मिलते हैं, A, B, C and D. It has 4 vertices A, B, C and D. It has 4 equal angles each 90 degree. सारे एंगल इक्वल हैं. देखो यहाँ बनाते हैं हम स्क्वायर, जी 90, 90, 90 and 90 degree. Measure of the side AB is equals to BC is equal to CD is equals to DA is equals to, टोटल क्या होगा इसका, सेंटीमीटर, वो टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे. Now next, second is rectangle. A quadrilateral with equal opposite sides. Equal opposite side, opposite कौन सी है, PQ के opposite SR and PS के opposite QR. These are the opposite sides and they are equal in rectangle. In the given figure, PQRS is a rectangle. It has opposite sides equal. PQ is equals to RS and PS is equals to QR. It has 4 vertices, again P, Q, R and S. It has 4 vertices P, Q, R and S. It has 4 equal angles each 90 degree. इसके भी हमारे सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री. मेजर PQ is equals to RS. PQ and RS जो भी होगा मेजर
वो आप यहाँ पे मेजर करके लिखेंगे एंड PS और QR का मेजर आप यहाँ लिखेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ नंबर ऑफ साइड्स, नेम ऑफ द पॉलीगॉन एंड शेप। 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होती हैं दैट इज ट्राइंगल, इस तरह की शेप होती है। जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है और इस तरह से हमारे क्वाड्रिलेटर की शेप होती है। नाउ जिसकी 5 साइड्स होती हैं इट्स पेंटागन और उसकी शेप इस तरह से होती है। जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो क्या होता है, हेक्सागन, और इसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। प्लेस अ बैंगल और एन इन्वर्टेड ग्लास ऑन अ शीट ऑफ पेपर। बैंगल कोई भी मम्मा की चूड़ी या ग्लास, उसको उल्टा करके होल्डिंग इट फर्मली, फर्मली मीन्स उसे हिलने नहीं देंगे। ट्रेस द आउटलाइन, इस तरह से रखेंगे और उसको आउटलाइन ऐसे ट्रेस कर देंगे, राइट, उसको हिलने नहीं देंगे। ट्रेस द आउटलाइन ऑन द पेपर, द शेप दस ऑब्टेन्ड इज सर्कल। इस तरह से जो शेप आएगी वो क्या होगी, हमारी सर्कल। जैसे ये गिवन है, ये मम्मा की बैंगल है, ये व्हील है, ये क्लॉक है और ये 1 रुपी कॉइन है। ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कुलर इन शेप। Parts of a circle. Cut out a circle and fold it twice. First into half and then into quarter and then unfold it. हमने क्या किया, एक सर्कल को कट किया, उसको पहले हाफ से क्या किया, फोल्ड किया, फिर उसको एक बार और फोल्ड किया तो इस तरह से शेप आई, और फिर उसे खोल दिया तो इस तरह से लाइंस आ जाएगी जहां जहां वो फोल्ड हुआ। तो द पॉइंट वेयर द 2 क्रीज्ड लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब हमने उसको इस तरह से फोल्ड किया और बीच में जो लाइन आई वो हमारी क्या है, ये क्या है हमारी, ये वाली, ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। दैट इज हमेशा क्या होता है, O, ओरिजिन पॉइंट। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सेंटर से सर्कल पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो लेंथ हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। द डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो ये रहेगा ये सेंटर है, इस सेंटर से कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ये हमारी क्या रहेगी, रेडियस, और ये हमेशा इक्वल रहेगी। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड OA, ये हमारा O क्या है, सेंटर पॉइंट है, OA, OB एंड OC। These are the radii, are radii, radii means 3 रेडियस है ना, प्लूरल ऑफ रेडियस, एंड आर ऑफ सेम लेंथ, और इनकी सबकी लेंथ क्या है, सेम। द लाइन that passes through the center of a circle with both its end points lying on the boundary of the circle is called the diameter of the circle। वो क्या कहलाएगा, diameter। that means center से पास होते हुए सर्कल के दोनों पॉइंट्स पे जो मिलेगा दैट इज द डायमीटर। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर क्या है, देखो सेंटर से इधर इधर ये दोनों रेडियस है और पूरा क्या बना, डायमीटर। 2 रेडियस हो गई तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। क्या है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल है, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसकी जो ये बाउंड्री है ये क्या होती है, सर्कमफ्रेंस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोला गया है। A line segment whose end points lie on the circle is called a chord। कोई भी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हो, सेंटर से पास हो या ना हो, लेकिन उसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हो, दीज आर कॉल्ड कॉर्ड्स। ये क्या कहलाती हैं, कॉर्ड्स कहलाती हैं। ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर में भी क्या होता है, डायमीटर में भी सर्कल पे है ना दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, बट वो सेंटर से पास होता है। तो डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट मीन सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो इस तरह से बच्चों
एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल. A circle can be drawn by moving a pencil around the edge of a bangle, a wheel and a coin, etc. A paper clip and two pencils can also be used to draw a circle. आप बैंगल लो, उसको फर्मली एक जगह रखो और चारों तरफ आप पेंसिल घुमा दो तो भी आप सर्कल बना सकते हैं. व्हील लो, उसके चारों तरफ आप पेंसिल से ड्रॉ कर दो तो भी आप सर्कल बना सकते हो. कॉइन लो, कॉइन के चारों तरफ पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो तो भी आप क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग ए सर्कल विद अ कंपास. कंपास पता है ना कैसा होता है, देखो ये जिसमें एक साइड पेंसिल होती है और एक साइड हमारा मेटल का पॉइंट होता है. तो इससे कैसे बनाएंगे सर्कल. वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट इन अवर ज्योमेट्री बॉक्स एज गिवन इन फिगर कॉल्ड कंपास और अ पेयर ऑफ कंपासेस. It can be used to draw a circle as given below. First, fit a sharp pointed pencil into the ring and tighten the screw. ये जो है यहाँ पे ये स्क्रू गिवन है और एक होल होगा, इसमें एक शार्प की हुई पेंसिल को आप फिट करेंगे और उसका जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे, मीन्स पेंसिल को उसमें फिक्स कर लेंगे. Now second is open the arm and measure the length of the ruler, radius of the circle. जितना भी आप लेंथ मेजर करोगे वो क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस. इस तरह से इसकी आर्म मतलब एक तरफ पेंसिल और एक तरफ मेटल का पॉइंट है, उसको थोड़ा ओपन करेंगे, स्केल से उसका मेजर करेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना भी करना है वो उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड नेक्स्ट क्या है, प्रेस डाउन द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन द पेपर. जो ये पॉइंटेड मेटल वाला पॉइंटेड पार्ट है इसको आप पेपर पे ऐसे फिक्स करेंगे और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको आप ऐसे मूव करेंगे यहाँ पे और उसको ऐसे इस तरह से मूव करेंगे, राइट. एंड मूव द पेंसिल अराउंड विदाउट मूविंग द पॉइंट ऑफ द कंपास. पॉइंट कौन सा, ये वाला मेटल वाला पॉइंट को आपको हिलाना नहीं है, वो वहीं फर्मली रखेंगे और पेंसिल को ऐसे चारों तरफ मूव करेंगे. The point of the compass marked the center. जहां पे ये पॉइंटेड आएगा वो सेंटर रहेगा O, right? Center of the circle and pencil make a circle around the center, that is point. तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is let's review. A point has no dimensions. A line is a collection of infinite points that can be extended in both the directions along its length. All line segment is a part of a line and it has a definite length with two endpoints. A ray has one endpoint, also known as initial point, and it can be extended only in one direction. A simple closed figure made up of line segments only is called a polygon. The distance from the center to any point on the circle is called radius of the circle. The line segment passing through the center of the circle with its endpoints on the circle is known as diameter of the circle. The diameter of a circle is twice the length of the radius of the circle. The length of the boundary of a circle is known as its circumference. A line segment whose endpoints lie on the circle is called a chord. A pair of compasses is used to draw circles. Next is maths fun. Draw a circle of any radius at any point as center. Draw another circle of same radius which meet first circle at 2 points. From these 2 points, again draw circles as center. Repeat with the points where the new circle meet the first. इस तरह से फर्स्ट सर्कल बनाया, अब दूसरा सर्कल बनाओ जो 2 पॉइंट से क्या करे, पहले वाले सर्कल को कट करे. फिर पहले वाले सर्कल को जैसे यहाँ से कट किया, यहाँ से एक सर्कल बनाया, यहाँ से कट किया, यहाँ से बनाया, यहाँ से कट किया, यहाँ से बनाया, यहाँ से कट किया. इस तरह से ये सर्कल, ये आप रंगोली टाइप एक डिजाइन बनाएंगे. तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. हाउ मैनी डायमीटर्स कैन ए सर्कल हैव. कितने डायमीटर होते हैं, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है. आप इनफाइनाइट डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं.
Now next is think, solve and learn. Draw circles of different sizes but keep the center as it is. Can you guess the name of these types of circle having common center? Concentric. क्या बोला है क्यों? Concentric, जिनके क्या होते हैं सेंटर पॉइंट मीन्स ओरिजिन पॉइंट सेम रहता है और सिर्फ हम क्या करते हैं रेडियस को बढ़ाते रहते हैं और सर्कल 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 वो कोसेंट्रिक होते हैं. तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.